Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 27th lecture on the course Organizational Behavior. So today we are going to discuss about strategic human resource management and how it influences employees' behaviors and their attitudes at the workplace. We'll also discuss the importance of strategic human resource management. What do we mean by strategic human resource management? And with respect to that, we'll be discussing the importance of aligning the organizational strategy with the human resource management strategy, and we'll be discussing that how we do that. Because in the lectures next to it, we are going to discuss the organizational structure, we are going to discuss the strategy and structure alignment. Therefore, I would like abhi when we are talking about the human resource management, और हमने पिछले दो lectures में भी HRM practices जो basic थी उनको discuss किया, अभी भी we are going to conclude that section wherein we'll be discussing the basic human resource management practices जो हम discuss कर रहे थे. We'll be just concluding that and then we'll be discussing the स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अभी हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और ये व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक perspective and how and what kind of implications it has for the organizations in terms of the behaviors of the employees, in terms of the selection processes, in terms of the other processes that the organization undertakes. Okay, let's have a recap of lecture 26 before we move to the to today's lecture. So 26th lecture में, as we that in the 25th from the 25th lecture we had started off with the human resource management practices. In the 25th lecture we discussed the basic human resource practice of recruitment. Then in the 26th lecture we discussed the selection. So recruitment, after the recruitment is finished, the selection process starts, and the selection process starts when you have the initial, there is a labor pool of applicants has already been collected, right? And then when you have collected that labor pool, out of that pool you have to make the selection. So that is where the selection process starts. तो यहाँ पर selection process में there are basically 8 different steps हैं इसके जो हमने discuss किए. One was the initial screening interview हमने डिस्कस किया जिसमें इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, और आफ्टर दैट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म इज़ कंप्लीटेड एंड फिर उसकी हमने उसमें वेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस किया. वी सॉ दैट हाउ द एप्लीकेशन जो वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कैसे वेटेज कैसे असाइन की जाती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है वेटेज असाइन करने की. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द constant updation and renewal of the different sections of the application forms, because with the passage of time, with the changes in the contemporary world, and with the changes in the organization itself, with the changes in the organizational structure, design, processes, etc., technology, etc., the requirements to perform the same job can become different, and as a result the job specifications can become different, and as a result the sections of the the different sections of the application form might need a constant review and reconsideration. So then we discussed that employment tests, that how the different types of employment tests are carried out by the different organizations, and उसमें हमने देखा कि there can be different sections हो सकते हैं, different elements हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं. तो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ऑलवेज जब भी आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो, एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, हर चीज़ जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में होती है और वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी सिनेरियो को, किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी डिस्कशन को. ठीक है, इट इज़ इन एक कॉन्टेक्स्ट में अगर एक चीज़ एप्लीकेबल है एक सिचुएशन में, तो दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल अंडर एन अदर सिचुएशन. ठीक है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते. उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ को देखा. इंटरव्यूज़ में हमने फिर डिटेल में हमने डिस्कशन की स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को डिस्कस किया. जो पैरल्स हैं किसी इंटरव्यू के और स्पेशली जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उनको हमने डिस्कस किया कि उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, हाउ दे कैन बी एड्रेस्ड एंड रिमूव्ड, और इंटरव्यूज़ जो हैं उनको ज़्यादा फ्लॉलेस कैसे बनाया जा सकता है और उनको ज़्यादा इफेक्टिविटी जो इफेक्टिवनेस है इंटरव्यूज़ की वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है. Then we discussed कि कैसे conditional offer होती है. When all these steps are successfully completed by an applicant, then he is made a conditional offer letter. फिर background investigation उसकी की जाती है और जो है वो जो आपकी conditional offer को की जाती है वो conditional होती है upon the
बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकल एंड फिजिकल एग्जाम ऑफ द इंडिविजुअल। और फिर इसमें हमने देखा कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें भी देयर आर नंबर ऑफ हमने चीज़ें काफ़ी सारी उसमें डिस्कस की कि क्या क्या आपका एग्जाम, उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसकी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, उनकी वैलिडिटी आप इंश्योर करते हैं। फिर वो जो पास्ट उसकी परफॉर्मेंस है, पास्ट एम्प्लॉयर से आप चेक करते हैं, राइट। और उसमें हमने देखा कि सिंस पास्ट परफॉर्मेंस जो है, बिकॉज समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं, वो इंटरव्यू में इंप्रेशन मैनेजमेंट कर जाते हैं, तो देयरफॉर आप जो पास्ट परफॉर्मेंस है फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर अगर आप वो चेक कर लें तो वो भी एक गुड इंडिकेटर हो सकता है कि हाउ द कैंडिडेट हैज़ बीन परफॉर्मिंग इन द पास्ट, तो इट कैन बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ ही विल बी परफॉर्मिंग इन द फ्यूचर। तो ये हमने डिस्कशन की मेडिकल फिजिकल एग्ज़ाम। हमने देखा कि जहाँ पर हम हर जगह पे हर तरह का मेडिकल और फिजिकल एग्ज़ाम एक कैंडिडेट को नहीं कह सकते कि वो टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट सबमिट करवाए, or we can ask the candidates to get tested against those diseases or against those illnesses which might hamper the smooth or functioning of the employee and smooth performance of the employee। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको upon the provision of satisfactory the exam reports and background investigation, the permanent job offer to the candidate is made। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस था जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ओके, इसके साथ हमारी दो जो प्रैक्टिसेस थी HRM की, जो बेसिक प्रैक्टिसेस थी वो तो फिनिश हो गई। उसके बाद जो है वो हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थर्ड प्रैक्टिस है। तो जब आपने सिलेक्ट कर लिया एक एम्प्लॉय को, उसके बाद क्या होता है कि वैसे तो बहुत डिटेल में अगर हम जाएं तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स उनको इतनी डिटेल में तो नहीं देख रहे और इतनी सारी प्रैक्टिसेस को भी नहीं देख रहे। दैट्स वाई मेरा मकसद था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी ओरिएंटेशन दे दूं जो बेसिक HR प्रैक्टिसेस है। तो वैसे जब आप एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है आफ्टर सिलेक्शन, तो जनरली ही हैज़ टू बी सोशलाइज्ड विद द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है इंडिविजुअल की। उसमें उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, उसको ओरिएंटेशन दी जाती है, उसको फेमिलियराइज कराया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेंटर असाइन कर देती हैं जो फ्रेश एम्प्लॉइज होते हैं उनको, और मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको ओरिएंट कराएं, फेमिलियराइज कराएं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोशलाइज करवाएं। ठीक है, और तो सोशलाइजेशन होती है एम्प्लॉय की व्हेन ही और शी इज़ फ्रेश। तो कोई सोशलाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, कुछ में नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि कितनी एक ऑर्गेनाइजेशन में सोफिस्टिकेटेड HRM पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, ये जब दो प्रैक्टिस, उसके बाद तीसरी जो की प्रैक्टिस है वो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसमें ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल बेसिक्स अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें जो इसके की पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज अ प्रैक्टिस के बारे में, और फिर उसके बाद देन विल मूव ऑन, बिकॉज फॉर टुडे जब हमने स्ट्रेटेजिक HRM डिस्कस करनी है तो इसके लिए भी हमारा एक हैवी एजेंडा है। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप ये देखें कि कुछ चीज़ें जो विच नीड टू बी एड्रेस्ड एंड डिस्कस, दे आर वन इज़ दैट एक फॉर्म डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, वेदर यू नीड टू ट्रेन द एम्प्लॉइज और नॉट। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ जाती है कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एम्प्लॉइज़ का कैरी आउट करें ऑर्गेनाइजेशन में, कि वेदर दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट, कि अगर वो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो किन एरियाज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ये जो एनालिसिस है ये HR डिपार्टमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट लाइन जो मैनेजर हैं या सुपरवाइजर है एम्प्लॉय का, उसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई करता है कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेस करता है और वो देखता है कि किन किन एरियाज़ में उसकी वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ पे उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ उसमें ये है कि ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपके नेचर ऑफ द जॉब किस तरह की है, वेदर द ट्रेनिंग इज़ रियली रिक्वायर्ड और नॉट, बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये एक इट्स एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉस्टली एक्टिविटी है, अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रॉपर एनालिसिस करें और जो है वो एनालिसिस इन इट्स ट्रू स्पिरिट किया जाए। ठीक है, तो अगर वो आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो जो ट्रेनिंग है वो आपने वेदर इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड कि किन एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, किन स्किल्स पे प्रोवाइड की जाए, वो अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होंगी, मिसमैच होगा जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनमें और जो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ ले रहे हैं उसमें, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसके ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि वो एक कॉस्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उस ट्रेनिंग के पे ट्रांसफ़र नहीं होगी।
ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगी जो है वो अगर वो ट्रेनिंग जो है वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट जॉब, उस एम्प्लॉई को एक्चुअली वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसमें चांसेस ये भी हैं कि वो एम्प्लॉई अगर आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी ऐसे एरिया में विच वो एम्प्लॉई परसीव करता है कि उसकी कोई एडेड वैल्यू नहीं है, कोई आउटकम ओरिएंटेड नहीं है, ट्राई टू रिकॉल द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो हमने की थी, वो यही कहती है कि जो अगर वो आउटकम कोई भी एक्टिविटी आप उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप ये परसीव ना करें कि उसका कोई आउटकम होगा और वो आउटकम आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो अगर एम्प्लॉयज़ ये परसीव करें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो मैंडेटरी है कि आपने वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लेकिन दैट ट्रेनिंग आप ये समझते हैं कि वो आपको कोई इसकी एडेड वैल्यू नहीं है, कोई आउटकम ओरिएंटेड नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं है जो भी उसका आउटकम है उसका, तो इन दैट केस आपकी मोटिवेशन कम होगी, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन विल बी लो एंड एज अ रिजल्ट आप जो है आपकी लर्निंग ट्रेनिंग में लो होगी, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो लो होगी एंड एज अ रिजल्ट वो जो ट्रेनिंग है वो दैट विल ओनली ऐड टू द कॉस्ट ऑफ टू द फर्म, ठीक है। वो उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उस ट्रेनिंग से, उसको उसकी कॉस्ट ही एड अप होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे किया है, आपने एक स्किल गैप जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, और फिर आपने उसको ट्रेन करना है। दूसरा फर्म साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो स्मॉलर फर्म्स होती हैं उनके इतने बजट्स नहीं होते जितने लार्जर फर्म्स के होते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी जो है वो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वेदर आपको बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स की कॉन्टीन्यूस ज़रूरत है या नहीं है, कंटिन्यूअल अटेंडिंग ऑफ वर्कशॉप्स की, अपनी डे टू डे जो अपडेटेड नॉलेज है, यू नीड टू अपडेट योर नॉलेज, जो पॉलिश करना उनको ये वो इनकी ज़रूरत है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अगर एक फर्म जो है वो उसका स्टैंडर्डाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और जैसे अपैरल वगैरह की फर्म्स हो गई जिनमें कोई एज सच यू नो देयर इज़ नो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत फास्टर और सूनर नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल मैस प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और वहाँ पे रूटीन लाइक जॉब्स हैं, तो वहाँ पर एज सच ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की उस सेटअप में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना शुरू कर दें तो वो एक कॉस्ट को ही ऐड करेगा, वो उसका एज सच इतना एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, वो दैट विल बी एडिंग ओनली टू द कॉस्ट टू द फर्म, ठीक है। तो इसलिए एक फर्म को इट हैज़ टू सी द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग, ठीक है। सेकेंडरी फर्म्स को ये भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि स्पेशली जो स्मॉल फर्म्स होती हैं उनमें अगर वो ट्रेन करें एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और वहाँ पर उनमें भी अगर स्पेशली इवन इफ द ऑल्सो इफ द साइज ऑफ द फर्म इज स्मॉलर, ठीक है, एक तो वो इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फर्म नहीं है, उसमें इतनी टेक्नोलॉजिकल यू नो अपग्रेडेशंस नहीं होती, और दूसरा ये कि अगर वो साइज़ भी उसका स्मॉलर है तो वहाँ पर अगर वो एक्सपेंस एम्प्लॉयज़ को जैसे समटाइम्स इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इंसेंटिव्स देती हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरवेंशंस होती हैं कि आप अपने इफ़ यू इम्प्रूव योर स्किल्स, अगर आप एक क्वालिफिकेशन कर लें, कोई पार्ट टाइम प्रोफेशनल डिग्री ले लें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीइंबर्स कर देगी आपको कॉस्ट ऑफ द डिग्री, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव जो स्किल बेस्ड पेज होती हैं या स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को रीइंबर्समेंट वगैरह दे देते हैं, और इस तरह की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के देयर नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशंस, बट दैट ऑल डिपेंड्स कि आपने उन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और फिर देखें कि उसकी एडेड वैल्यू क्या होगी, क्या एडवांटेजेस होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, एम्प्लॉय स्किल सेट वाकई इंप्रूव होगा, डू यू रियली नीड टू इन्हांस दो स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन विच यू आर गोइंग टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरह की इंटरवेंशंस जो है वो दे देती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो एक स्मॉलर फार्म है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट को ऐड करेगा। ऑल्सो बिकॉज एक मिडिल साइज्ड अगर एक मीडियोकर सी फर्म है और वो स्मॉल साइज फर्म है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जब अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उन्होंने एक बेनिफिट ले लिया, लेकिन दे विल नॉट नॉर्मली जो जनरली ये होता है कि जो ट्रेंड्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो स्मॉलर फर्म से जब एम्प्लॉयज़ जैसे आप अपनी स्किल्स ऑफ कोर्स इंप्रूव कर लेते हैं तो ये टेंड टू मूव एंड यू टेंड टू फाइंड सम अल्टरनेटिव जॉब्स
ठीक है। तो अल्टरनेटिव जॉब ऑप्शंस आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, लार्जर फर्म्स में, लार्जर सेटअप्स में जाने की कोशिश करते हैं, बेहतर जॉब्स आप देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्म्स के लिए ये भी एक चैलेंज होता है कि अगर वो ट्रेन कर रही हैं एम्प्लॉइज़ को, उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, तो उनके फिर कमेंसुरेट आर दे ऑल्सो इन्हांसिंग द सैलरी एंड द अदर पैकेजेस, बेनिफिट्स भी इन्हांस कर रही हैं एम्प्लॉइज़ को कि नहीं। अगर वो उनके पैरेलल एम्प्लॉइज़ को गैप आना शुरू हो जाए कि आप उनको ट्रेनिंग और स्किल्स तो एम्प्लॉइज़ के पास आ रही हैं, लेकिन उसके पैरेलल फिर उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा उनके स्किल्स के पैरेलल, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ भी डीमोटिवेट हो जाएंगे एंड देयर आर हायर चांसेस कि एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके टर्नओवर इंटेंशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी एंड दे विल स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हायर पैकेजेस विच आर कमेंसुरेट विद देयर न्यू स्किल्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए द ट्रेनिंग कैन बी वेरी कॉस्टली अगर वो एम्प्लॉइज़ को फिर रिटेन ना कर पाएँ आफ्टर ट्रेनिंग देम। एक तो ट्रेनिंग के ऊपर भी एक्सपेंस करें और आफ्टर दैट वो फिर उनको रिटेन भी ना कर पाएँ। तो ये सारे चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हेन इट हैज़ टू ट्रेन एंड डेवलप द एम्प्लॉइज़। ठीक है, और आउटकम्स ऑफ कोर्स इसके इन टर्म्स में एक तो देखें टर्नओवर वगैरह आपका बढ़ सकता है अगर आप उनको प्रॉपरली एम्प्लॉइज़ को उनकी खपत अगर आप प्रॉपरली ना कर सकें तो। ठीक है, और बाकी ये कि ऑफन मिक्स्ड फाइंडिंग्स हैं इनके एज फॉर द आउटकम्स ऑफ द ट्रेनिंग स्टडीज़ में कि एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को और एटीट्यूड्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सम स्टडीज़ इंडिकेट के जैसे जब एम्प्लॉयज़ ये परसीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स ऑन देयर ट्रेनिंग, तो इट मीन्स दैट द एम्प्लॉयज़ परसीव that the organization is caring towards them and it takes care of their career के बारे में उनकी केयर करती है और उनकी needs और उनकी aspirations के बारे में, उनकी professional development के बारे में the organization is concerned. The employees have this perception and as a result the employees tend to enhance their commitment with the organization. उनकी performance increases. That has been reported कि उनकी performance increase होती है, उनकी commitment और satisfaction increase होती है with the organization. But of course we have the mixed findings. Also जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टडीज़ ये भी इंडिकेट करती हैं कि वो टर्नओवर इंटेंशन जो है वो उसको भी इन्हांस कर सकती है जो आपकी हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है अगर एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही आफ्टर इन्हांसिंग देयर स्किल्स, तो देन ऑफ कोर्स फिर ये इस तरह के आपको आउटकम्स ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नेगेटिव आउटकम्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स जो हैं इसको अगर आप देखें तो कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स के बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जब हमने मोटिवेशन का चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ को हाउ यू हैव टू कीप देम मोटिवेटेड, जब हमने तो उसमें हमने देखा था कि रिवॉर्ड्स एज आर यूज्ड एज अ वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। उस पर हमने ये भी देखा था कि पेज जो हैं वो कैसे सेट की जाती हैं, कॉम्पनसेशन कैसे सेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल एनालिसिस भी किया जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस भी किया जाता है, फिर कॉम्पनसेशन पैकेजेस वगैरह जो हैं वो सेट किए जाते हैं। रिवॉर्ड्स को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने ये देखा था कि फिक्स्ड पेज भी हो सकती हैं, वेरिएबल पे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। फिर हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और उनके इंडिविजुअली आउटकम्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो हैं ये बेसिकली रेफर टू द सिस्टम, हमने इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको ओरिएंटेशन थोड़ी सी दे रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, बिकॉज अभी तक आई नो के लिटरेचर में बुक्स में दे आर नॉट देयर बिकॉज इट इज़ अ रीसेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिवली, और ये आपको रिसर्च पेपर्स में भी मिलेगा, बुक्स में भी शायद इतना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो हैं ये दे आर बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये सेट जो है ये आप यूज़ करें, वो वाली एचआर प्रैक्टिसेस हैं जो कि यू नो कमिटमेंट ओरिएंटेड एचआर प्रैक्टिसेस हैं एंड नॉट कंट्रोल ओरिएंटेड एचआर प्रैक्टिसेस। और ये कहा जाता है कि ये एक बंडल ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस है दैट इफ़ यूज्ड टुगेदर, ये सारी एचआर प्रैक्टिसेस अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करे तो इट कैन रीड द बेनिफिट, और वो जो उसका आउटकम्स होंगे वो सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा अगर ये सारी एचआर प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन इनका बंडल अगर यूज करे कंपेयर टू अगर वो इंडिविजुअली एचआर प्रैक्टिसेस यूज करती है तो उसको उतना एडवांटेज नहीं होगा और उसको वो सिनर्जी क्रिएट होगी व्हेन द ऑल द एचआर प्रैक्टिसेस आर यूज्ड टुगेदर इन अ बंडल। ठीक है, तो ये हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। It is basically the strategic and coherent approach
to the management of an organization's most valued assets, the people working there who individually and collectively contribute to the achievement of the objectives of the business. ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज द नेम इंडिकेट्स, ये एक तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरी कोहेरेंट अप्रोच है टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूड एसेट्स, दैट इज who are they, the people who are working there, both individually भी, of course individuals वहाँ पे employees काम कर रहे होते हैं और collectively भी in teams भी काम कर रहे होते हैं in order to achieve the objectives of the business. तो ये एक strategic approach है human resource management. ठीक है, अब who is managed when we are talking about human resources? Of course, all the workforce is managed. All the workforce groups are managed when we are talking about managing the human resources. ठीक है, all the employee cadres, not only the employees, क्योंकि जनरल मिसकॉन्सेप्शन यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मैनेज करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. HRM का मतलब ये है कि anybody who is part of the organization, we are talking about the management of that individual, whether that is at the employee level, junior level पे, senior level पे, highest level पे, even the CEO, the top managers of the company are also managed. उनकी भी accountability है, वो भी रिपोर्ट करते हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं प्रॉपर. ठीक है, तो एग्जेक्टिव जैसे पूरी उनका सिस्टम है उनकी कंट्रोल का, अकाउंटेबिलिटी का. तो इट्स अबाउट द मैनेजिंग द एवरीबडी इंक्लूडिंग द मैनेजर्स देमसेल्व्स. सो इट्स जस्ट अ डिफरेंस इन द वे दे आर बीइंग मैनेज्ड. ऑफ कोर्स जो टॉप मैनेजर्स हैं आप उनको उस तरह से मैनेज तो नहीं होते जैसे कि लोअर लेवल पे मैनेजर्स हों या जैसे एम्प्लॉयज़ हों. हर लेवल के ऊपर मैनेज करने का एम्प्लॉयज़ को द वे इज़ डिफरेंट. ठीक है, जो जितना लेवल लोअर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड सिस्टम ज़्यादा होगा. ठीक है, कंट्रोल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितना लेवल अप होता जाएगा उतना ही ट्रस्ट ओरिएंटेड सिस्टम ज़्यादा होगा, और द पीपल विल बी मैनेज्ड इन द हाई ट्रस्ट मैनर. उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी उनके पास ज़्यादा होती है, आपको पता है. जो टॉप मैनेजर्स हैं या हायर मैनेजर्स हैं, दे हैव द मोर अथॉरिटी, उनके पास ज़्यादा होती है, दे हैव मोर ऑटोनॉमी. ठीक है, डिसीजन मेकिंग उनके पास ज़्यादा होती है, पावर्स उनके पास होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल. अकाउंटेबिलिटी भी उनकी होती है. ठीक है, और जितना लेवल लोअर होता जाता है उतनी ऑटोनॉमी कम होती है, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती, कंट्रोल ओरिएंटेड वो ज़्यादा होते हैं. सो दे आर मोर कंट्रोल्ड, उनके बिहेवियर ज़्यादा कंट्रोल्ड होते हैं. ठीक है, एट एवरी स्टेप उनके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अब सीसीटीवी कैमराज हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोअर लेवल होता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज उनकी तो मॉनिटरिंग हो रही होती है, लेकिन हैव यू एवर सीन दैट सीसीटीवी कैमरा के साथ जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा हो? तो ऐसे नहीं होता. ठीक है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द मॉनिटरिंग थ्रू सीसीटीवी कैमराज, इट्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में. जो सैंक्शंस हैं, जो बेसिकली ये कंट्रोल का मेथड है ना, कि आप जो एक लोअर लेवल है जैसे कैशियर है, तो वो एक फॉर एग्जांपल वो अगर अप टू 5000 अगर कोई चेक आता है तो वो उसको इन कैश डायरेक्ट हिमसेल्फ कर सकता है, ही इज द अथॉरिटी. ठीक है, उसके पास डिसीजन मेकिंग है, वो उसको इन कैश कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है तो. लेकिन अगर कोई 20,000 का चेक आता है तो वो उसको नहीं कर सकता, ही डज नॉट हैव. वो उसका जो हायर लेवल का उसका जो बॉस होगा वो उसको ओके कर सकता है. अगर 50,000 का आ जाता है तो वो मे बी ऑपरेशंस मैनेजर ओके कर सकता है, उससे भी जो हायर लेवल का है. तो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल है ना, इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम. तो जो जूनियर मोस्ट जूनियर लेवल है उसको ज़्यादा टाइट कंट्रोल है उसके ऊपर कंपेयर टू द मैनेजर एट अ हायर लेवल, उसके ऊपर इतना टाइट कंट्रोल नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट वर्कर रिलेशंस एंड मैनेजमेंट यूनियन रिलेशंस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन मैनेजिंग HR, तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग all the human resources. We are talking about the not only the management worker relations but also about the union management relations. यानी कि जब unions organizations में establish हुई होती हैं तो उनके relations with the management, we are also talking about them. They are also part of the human resource management. लेकिन of course it depends on context पे again ये depend करता है. अगर कुछ organizations जो हैं वो जैसे अमेरिका में यूनियंस जो हैं उनका कोई सच होल्ड नहीं है, यूनियंस का मिनिमल एग्जिस्टेंस है, यूनियंस की फ्री इकोनॉमी है, आपको पता है वहाँ पे लेजिस्फेयर है, सिस्टम है उनका टोटली. ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और वहाँ पर जो यूनियंस हैं दे उनका बहुत मिनिमल है. लेकिन जर्मनी में यूनियंस की एग्जिस्टेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर यूनियंस आर वेरी पावरफुल इन जर्मनी.
तो अब जर्मनी की जो टेक्स्ट बुक्स होंगी वहाँ पर यूनियंस, मैनेजमेंट यूनियन रिलेशनशिप्स हैं, दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप अमेरिकन बुक्स पढ़ेंगे या उनको देखेंगे तो उनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस या यूनियन रिलेशंस जो हैं वो शायद बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, उनको इतना वेटेज नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान है जैसे, तो यहाँ पर क्या है, यूनियन रिलेशंस, यहाँ पे भी यूनियंस होती हैं, यहाँ पे एक मिडल सवे है, इतनी स्ट्रांग भी नहीं है यूनियंस और इतनी मतलब लेजिस्लेटिव स्टेट भी नहीं है। अच्छा, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स की जब हम बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट हु इज इन्वॉल्व्ड इन द एचआरएम प्रोसेस, किसकी बात हो रही है? तो ऑफ कोर्स एचआरएम में दो तरह के बेसिकली लोग होते हैं, एक तो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, दूसरे लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स आर द वंस हु आर बेसिकली जो बहुत एचआरएम के स्पेशलिस्ट हैं, जो ठीक है स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे कॉम्पनसेशन स्पेशलिस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या लॉज वगैरह जो बनाते हैं, सो दे आर वो लोग हो गए। फिर ट्रेनिंग मैनेजर्स आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग मैनेजर है जी, ठीक है। इसी तरह कॉम्पनसेशन मैनेजर होता है जो कॉम्पनसेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह करके फिर वो देयर ऑल स्पेसिफिक अपने अपने एरियाज में जो उन्होंने स्पेशलिस्ट बनाए होते हैं, ठीक है। ऑल द जितनी भी एचआरएम प्रैक्टिसेस हैं आप ये देखें, फिर रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है, तो इस तरह से दे आर ऑल द स्पेशलिस्ट इन देयर ओन स्पेसिफिक एरियाज। देन वी आल्सो हैव द लाइन मैनेजर्स, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द एचआरएम प्रोसेस। ये जब हम एचआरएम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें लाइन मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल इन द एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लाइन मैनेजर who is the supervisor or the direct boss of the employee, he is also involved when we are talking about the HRM or the HRM process. How? Because they can training need analysis है, वो आप without the help of the line manager you cannot do that, ठीक है। इसी तरह ही आप कोई भी चीज़ है, रिक्रूटमेंट अगर आपने करनी है तो आप वो जो रेलिवेंट लाइन मैनेजर है उसकी इंक्लूजन के बगैर, उसकी विदाउट कंसल्टिंग हिम आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज एज एन एचआरएम स्पेशलिस्ट यू डोंट नो कि किस किस्म का, किस स्किल सेट का बंदा जो है वो रिक्वायर्ड है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये तो लाइन मैनेजर ही आपको फीडबैक देगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी रिक्वायर्स, ठीक है। ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर लाइन मैनेजर जो है वही एम्प्लॉय को गेज कर सकता है। देयरफॉर जो एक पैनल इंटरव्यूज जब होते हैं तो उसमें जो लाइन मैनेजर है, ये जो टेक्निकल सुपरवाइजर है, ही हैज टू बी इन दैट पैनल, बिकॉज वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर तो वही जान सकता है कि एम्प्लॉय को, ठीक है। तो इसलिए द लाइन मैनेजर्स दे हैव टू बी इन द लूप एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, बिकॉज हर स्टेप के ऊपर फिर इस तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं तो वो भी आपके लाइन मैनेजर ने फिलअप करनी है। तो बाकी प्रोसेस जो है वो दैट इज कंडक्टेड बाय द एचआरएम, ठीक है। फिर वो उनकी बेस के ऊपर कैसे उनकी कॉम्पनसेशन कैसे देनी है, रिवॉर्ड्स कैसे सेट करने हैं, क्या परसेंटेजेस होंगी, दीज ऑल कैलकुलेशंस आर डन बाय द एचआरएम स्पेशलिस्ट, ठीक है। बट द फीडबैक इज कमिंग फ्रॉम द लाइन मैनेजर. When we talk about the different management styles, so we say that there are a variety which is depending upon the nature of the contract, such as the permanent or contractual. अगर of course the management style is different when we talk about कि वो किस तरह का nature है, whether वो एक permanent employee है तो उसके लिए management style different होगा, अगर contractual employee है उसके लिए different होगा. इसी तरह part time full time workers के लिए different styles होंगे और इसी तरह ही the styles they differ even within the firms, within different departments, ठीक है. मैनेजमेंट स्टाइल डिफर करता है, ठीक है. तो और बिटवीन फर्म्स तो ऑफ कोर्स इट डज डिफर. जैसे किसी एक फर्म में 2-3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो इट इज़ पॉसिबल कि हर डिपार्टमेंट की जो है वो जो लेट वर्क की या वर्किंग आवर्स की पॉलिसी जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है. और इसी तरह जो हॉलीडे प्लान्स हैं वो हर डिपार्टमेंट के इट इज पॉसिबल के डिफरेंट हो. कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जैसे दे इवन कॉल द वर्कर्स ऑन ड्यूटी ऑन संडे, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं होता. इसी तरह उनकी जो लीव है उसकी पॉलिसी भी दैट इज पॉसिबल कि लीव पॉलिसी भी डिपार्टमेंट में डिफरेंट हो. कुछ डिपार्टमेंट्स में हो सकता है कि लीव्स जो हैं वो जैसे अर्नड लीव्स वगैरह होती हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स में मैंडेटरी भी होती हैं और कुछ में नहीं होती. तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की या जो मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं दे कैन बी डिफरेंट. और विद इन ऑर्गेनाइजेशंस तो डिफरेंट हो ही सकते हैं, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑफ कोर्स दे कैन बी डिफरेंट बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ देन डिफरेंसेस जो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं.
तो दे कैन बी डिफरेंट, ठीक है. बट अल्टीमेट एक गोल क्या है फर्म का? टू अचीव द कंपैटिटिव एडवांटेज. मल्टीपल स्टाइल्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स आप क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि आप उनको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एज पर द सिचुएशन, एंड बिकॉज यू वांट टू अचीव द जो बेस्ट आउटकम है वो अचीव करना आप चाहते हैं और कंपैटिटिव एडवांटेज आप गेन करना चाहते हैं. सो ओवरऑल एम इज टू डिजाइन द वर्क सिस्टम्स विच आर अराउंड फर्म स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स अराउंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज लाइफ साइकिल. अच्छा, when we talk about the HR goals, so there are basically 3 critical HR goals हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. एक तो है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है. तो इसमें हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, या जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्शन है, हायरिंग वगैरह जैसे जब आप करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए. अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है, तो वो लेबर जो है वो प्रोडक्टिव इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो लेकिन वो प्रोडक्टिव भी हो, ठीक है. तो वो उसकी जो है बेसिकली एफिशिएंसी होनी चाहिए फॉर बीइंग प्रोडक्टिव. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म है जो कि आईटी ओरिएंटेड फर्म है जहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, ठीक है. तो और वो हाईली स्किल्ड लेबर इज कमिंग एट अ वेरी हाई प्राइस, ठीक है. तो अब वो क्या है, वो दैट वॉन्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द फर्म, बट दैट विल बी लेबर प्रोडक्टिव. वो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि वो लेबर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर वो फर्म उसको हायर कर लेती है, ठीक है. तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन वो ज़्यादा देगा और बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्शन देगा, ठीक है. एज अ रिजल्ट वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा उस फर्म के लिए जिसको एक आपने एक्चुअली बहुत हायर वेजेस के ऊपर हायर किया हुआ है. लेकिन अगर आप उसी काम के लिए एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लेती हैं जिसकी जो है वो who is not as skilled, ठीक है, और बिकॉज वो आपको कम कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली दैट विल एंड अप इन मोर कॉस्ट टू यू बिकॉज उस एम्प्लॉय का इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है टू परफॉर्म दैट वर्क विच वॉज अ हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क. और वो एम्प्लॉय को मशीनरी को, आपके प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को वो डैमेज कर सकता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट हैंडलिंग दैट प्रोडक्ट और प्रोसेस, एंड एज अ रिजल्ट और उसकी प्रोडक्टिविटी भी दैट इज गोइंग टू बी सफर्ड एंड लोअर, एंड एज अ रिजल्ट उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी. देयरफॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ये चीज़ आपको इससे पता चलनी चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक फॉर्म अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. कॉस्ट इफेक्टिव उस वक्त होगी जब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी पर यूनिट कॉस्ट. प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो उतनी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है. तो इसलिए एट ऑल द स्टेप्स जो एक फर्म को ये देखना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लेबर प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना चाहिए. ये क्रिटिकल एचआर का गोल है. दूसरा गोल जो है वो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप ये देखें कि जो दैट रिफर्स टू द मैनेजिंग द चेंज, द कैपेबिलिटी टू चेंज, यानी एबिलिटी आपकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं. हमने वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस जो एक्सटर्नल मार्केट में आती हैं ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट में, और आप ये देखें कि उनको द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजेस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. और मैंने आपको एक अपने लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इफ इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन इट कैन फॉल इन स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, ठीक है. अगर वो उस प्रोपोर्शन पे चेंज अपने आप को नहीं कर पाती या नहीं कर सकती जिस प्रोपोर्शन पे जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, तो वो it will fall into drift. So you can take the example of M&S. M&S के साथ ये हुआ that for a long period of time the managers at M&S they were earning high profits, बड़ी top के ऊपर जा रही थी firm, और they were considering that they don't need any change, ठीक है, कि उनको अपने प्रोसेसेस में किसी चेंज की जरूरत नहीं है बिकॉज द कस्टमर दे आर वेरी हैप्पी, गुड रिस्पॉन्स ऑन द कस्टमर्स एंड दे आर हैप्पी. उन्होंने क्या किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर्स की जो डिमांड्स हैं वो चेंज होती जाती हैं, उनका टेस्ट चेंज होते जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती जाती हैं. अगर आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को उनके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड इट द सेम हैपन टू M&S. सो बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस रेजिस्टेंस ऑफ द M&S टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द नीड्स, they did not respond to those needs, and as a result they were left behind, ठीक है, then fell into strategic drift,
ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखें, ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल मार्केट है उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, रिसेशन भी आता है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी कि अगर वो अपने हेड काउंट्स हैं उनको भी अपनी जो कॉस्ट्स को कम करने के लिए या अपने हेड काउंट्स हैं उनको भी वो कोई ऐसी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस लेके आए कि जब एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की कम हो गई, ठीक है, जैसे ड्यू टू द अगर आपकी सीजनल प्रोडक्ट है जैसे कार्डिगन्स हैं तो ऑफ कोर्स विंटर्स में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और समर्स में कम होती है। तो समर्स में जब डिमांड बहुत कम हो जाती है तो आप वही जो लेबर आपने हायर की हुई है ऑफ कोर्स आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी लेकिन कॉस्ट उसकी उतनी होगी, तो वो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो फिर इट मीन्स दैट यू वॉन्ट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो वो होगी जब आप एक्सटर्नल मार्केट जो है यानी एक्सटर्नल जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आप या अगर एकदम से किसी की प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो वो होगी कि आप अपना हाउ यू हैव टू क्विकली इन द शॉर्ट रन में आपने कैसे मैनेज करना है उस इंक्रीज डिमांड को। आपके पास जो लेबर फोर्स है क्या उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या आप फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मूव कर सकते हैं, जैसे मल्टी स्किलिंग मल्टी टास्किंग करवा सकते हैं अपने वर्कर्स से जो करंट वर्कर्स हैं, ताकि वो क्विकली आपको जिस एरिया में जिस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एकदम से ज़्यादा हो गई है आप उनको लोगों को कुछ रोटेट कर दें टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट जहां पे अभी इतनी डिमांड नहीं है या कम है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल द ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एंड दिस इज द फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अदर वन जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी कि आप हेड काउंट्स को हाउ कैन यू जो आपके हेड काउंट्स को कैसे आप एक रख सकते हैं एट वन पॉइंट कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो चीज़ें जो न्यूमेरिकल और फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने अभी इधर डिस्कस की, ये तो शॉर्ट टर्म बेसिकली एजिलिटी गेन करने के लिए। लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी या एजिलिटी एक फर्म को उस वक्त मिलती है जब उसके जो लॉन्ग टर्म वो टारगेट्स हैं वो अचीव हों, ठीक है, और वो मीट हो रहे हों, दैट देन इट गेट्स द लॉन्ग टर्म एजिलिटी। जैसे मीटिंग द लॉन्ग टर्म टारगेट्स सच एज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड मार्केट डिमांड्स, जैसे कोई इनोवेशन का, ये तो देखें शॉर्ट टर्म आपकी डिमांड और सप्लाई की बात हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी जो रिक्वायर्ड है, जैसे इनोवेशन का गोल है, क्रिएटिविटी का गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजिलिटी हैं दे आर बेसिकली क्रिएटिंग द टेंशन फॉर द फर्म, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गोल्स हैं फर्म के, वो एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म भी अचीव करना चाहती है और शॉर्ट टर्म भी। अब शॉर्ट टर्म अचीव करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन होती है कि वो आप जो है अपने एक मिक्स रखें, मतलब आप जो हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बेस को कम रखें, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप वर्कर्स रख लें, जैसे पार्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर रख लेती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जैसे समर विंटर का सीजन आया, कार्डिगन्स की फर्म थी, उसने क्या किया 3 या 4 या 6 मंथ्स जो विंटर्स वाले हैं उसके लिए हायर कर लिया एम्प्लॉयज़ को और उस टाइम में उन्होंने प्रोडक्शन दी। जब वो टाइम पीरियड ओवर हुआ फिर जब टफ का सीजन आया तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी एम्प्लॉयज़ का फिनिश हो गया एंड दैट्स इट। तो इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन अ फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं दे आर बेसिकली रिपोर्टेड कि इनकी कमिटमेंट जो है वो कम होती है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डोंट हैव, उनकी लाइफ टाइम उनके पास ना जॉब सिक्योरिटी होती है ना लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी होती है। दे नो दैट आफ्टर 4 to 6 months उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एंड देन दे हैव टू फाइंड अनदर जॉब और अनदर कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर उनकी भी लिमिटेड जो कमिटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म एजिलिटी अचीव करने के लिए, इनोवेशन लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास उनकी कमिटमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, जो कि नहीं होती बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म एजिलिटी टारगेट्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है ये देयर आर नंबर ऑफ कुछ मॉडल्स इमर्ज हुए विच आर द कोर पेरिफेरी मॉडल्स, और ये कोर पेरिफेरी मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि क्या आपको परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या आपके पास रेशो होनी चाहिए और जो पेरिफेरी एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्कर्स हैं, उनकी आपके पास क्या बेस होने चाहिए सो दैट आप एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म एजिलिटी को भी गेन कर सकें थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू आप लॉन्ग टर्म एजिलिटी को भी मेंटेन कर सकें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक गुड रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स होना चाहिए बोथ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ टू अचीव the short run and the long run agility goals. Then social legitimacy is another HR goal, which is the third critical HR goal.
और इसमें आपको सोशल लेजिटिमेसी में आपको पता है कि डील्स अबाउट द इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इट्स बेसिकली दो तरह के आपको पता होगा कि मॉडल्स हैं, एक तो स्टेक होल्डर मॉडल है और एक शेयर होल्डर मॉडल है। तो शेयर होल्डर मॉडल तो बिलीव्स इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इट सेज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन स्टेक होल्डर मॉडल हमें कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ यही पर्पज नहीं है और यही उसका एम नहीं होना चाहिए, बट इट हैज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ नंबर ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स भी उसमें आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, employees itself आ जाते हैं, and not only the shareholders but also all these different entities and also the general public or the environment. The organization is socially responsible towards its environment and the social public as well, and that is the social legitimacy view. ठीक है, so it says that basically occupational safety और health organization को provide करनी चाहिए, national environment को organization should see कि जो भी वो products produce कर रहे हैं वो कैसे produce कर रहे हैं, उसके environment के ऊपर क्या influences हैं, वो pollute तो नहीं कर रहे हैं environment को, उसके लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सोशल लेजिटिमेसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर मिशन स्टेटमेंट्स एंड दे बेसिकली हैव द इंसेंटिव्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर। ठीक है, और जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 जो है उसमें भी दैट इज सर्टिफाइड ऑडिटर्स और एक्रेडिटेड ऑडिट एजेंसी दे कंसल्ट द एम्प्लॉइज एंड यूनियंस फॉर कंप्लेंट्स एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस के जो उनको नहीं फॉलो। तो इसलिए इस तरह की जो एक्रेडिटेशंस हैं और इस तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको लेने के लिए, ये बेस्ट कंपनी के सर्टिफिकेट्स लेने के लिए और इस तरह के स्लोगन्स करने के लिए भी समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसमें इंगेज होती हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स में। बट ओवरऑल ऑन द होल हमने देखा होगा कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं और उसको वो अकाउंट फॉर भी कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो देयर आर अ नंबर ऑफ अदर गोल्स जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के हैं। ये तो हमने क्रिटिकल 3 गोल्स देखे। तो बेसिकली द अदर गोल्स आर गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉइज। अगर हम उनको बहुत डिटेल में देखें तो एट अ वेरी क्लोज इफ यू लुक एट देम सच एज द स्टाफिंग विच इज द वर्कप्लेस प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग है, फिर उसमें स्पेसिफाइंग जॉब्स एंड रोल्स, रिक्रूटिंग, आउटसोर्सिंग, हैविंग सर्विसेज एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉन एम्प्लॉइज, then the staffing which is the screening applicants, then selecting and hiring of new applicants. तो ये हमने डिस्कस की हैं चीज़ें। फिर employees due benefits and compensation, training employees, फिर उनकी career development है, orientation, leadership development, management development आ जाती है इसमें, personnel development आ जाती है, supervisional development आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ensuring a compliance to regulations, personnel policies and records, employee laws, topics and issues, ethics, practical toolkit to comply all statutory requirements under labor laws. तो इस different किस्म के जो laws हैं, regulations हैं, rules हैं, इनकी compliance जो है ये भी अब it is also one of the HR goals. Then ensure safe work environment, that is very important. ठीक है, तो सेफ्टी के ऊपर इसलिए और ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर हमने एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट लेक्चर भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने एक अपना लेक्चर किया हुआ है। डीलिंग विद ड्रग्स एट द वर्क प्लेस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स, एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ which is a safe facilities at the workplace, इनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। Then personal wellness, preventing violence at workplace को डिस्कस किया हुआ है। Ensuring safety at the workplace, supporting spirituality at the workplace, so that is also one of the HR goals. Supporting, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी होती हैं, बड़े सेटअप्स होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, प्रेइंग एरियाज तो अक्सर होते ही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बट दे ऑल्सो हैव देयर मॉस्क्स, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं तो उन्होंने अपनी मॉस्क बनाई होती है। ठीक है, या बड़ी जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, ऑल्दो दैट इज नॉट अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रेयर रूम्स जो हैं दे आर commonly available organizations में, तो that is because they are all the considered as the rights of the employees। ठीक है, और फिर उसके बाद sustaining high performing employees, employee performance management कैसे करनी है, group performance appraisals के ऊपर, performance management के ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है। different areas में, different lectures में तोड़ के की हुई है, बट वी हैव डिस्कस देम ऑल अ लॉट। ठीक है, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिटेनिंग एम्प्लॉइज, health, then we have the few strategic tensions in HR. So again we have the 3 tensions in HR. Let's have a discussion on them. One is the labor scarcity. तो tensions मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो आप ये देखें कि हमने ऑलरेडी मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट बताया था कि जैसे कुछ बहुत हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, दे आर इन स्कार्सिटी।
ठीक है, तो वो जैसे आईटी में आईटी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी स्कार्सिटी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन रिपोर्टेड टू बी इन स्कार्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये फिनोमिनन है। तो जब लेबर स्कार्स होगा तो उसको जितना स्कार्स होगा उतना ही उसको अट्रैक्ट करना और रिटेन करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो देन दैट लेबर कम्स एट अ वेरी हाई प्राइस, ठीक है। तो इसमें अब टेंशन क्या है? टेंशन इज फॉर द स्मॉलर फर्म स्पेसिफिकली, क्योंकि स्मॉल फर्म्स की पॉकेट्स आर नॉट सो डीप, वो इतना अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है टू रिटेन द हाई स्किल्ड लेबर। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो हाई स्किल्ड लेबर है वो डिमांड भी है आपकी प्रोडक्ट की और आपकी कंपनी की। तो स्मॉल और ठीक है, तो अगर आप स्मॉल फर्म्स उसको हायर कर लेती हैं, बट द प्रॉब्लम इज टू रिटेन देम, ठीक है, बिकॉज वो जो लेबर है आपको पता है जो हाईली स्किल्ड भी है, जिसकी शॉर्टेज भी है, यानी उसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है, इट इज़ वेरी मच लाइकली कि इट विल बी पोस्ड बाय द लार्जर फर्म्स या लार्जर कंपनीज में वो चला जाएगा, बिकॉज उनको जब बड़ी फर्म में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इट विल श्योरली मूव देयर, ठीक है। तो इसलिए जो एक चैलेंज है, इट इज़ अ चैलेंज फॉर द स्मॉल फर्म्स कि वो उन्होंने जब वो लेबर जिसकी स्कार्सिटी है, वो जिसकी शॉर्टेज है ऑलरेडी, हाउ टू रिटेन दैट लेबर फोर्स। तो लार्ज फर्म्स जो वेल रिसोर्स्ड होती हैं उनके लिए तो ये टेंशन या चैलेंज उस तरह से नहीं है, बिकॉज वो तो अफोर्ड कर सकती हैं, उनको बहुत हायर प्राइसेस, मार्केट से ज़्यादा हायर प्राइस दे के उनकी रिटेंशन भी कर सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द शॉर्ट फर्म्स, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस टेंशन? देन सेकेंड स्ट्रेटेजिक टेंशन इन HR इज द लेबर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या है कि आप ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिफाइंड। आपको मैंने साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की ऑलरेडी एग्जांपल दी थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वो कैसे ब्रीच होता है, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिकली अननोन, जो अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर के बारे में बन जाती हैं, उसकी आपके बारे में बन जाती हैं, और फॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी फॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते, बट आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। जैसे आपको एम्प्लॉयर ने बताया कि जी वी हैव अ नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, वी सेंड द पीपल टू द ट्रेनिंग्स एवरी ईयर, ठीक है, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे, ठीक है। तो आपकी क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो गई। अब आप जब ने वर्क करना शुरू किया, साल 2 साल अगला आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज आपको ये एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बताया गया था, एक पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे की गई थी, ठीक है, अपने डेवलपमेंट की और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बट एक्चुअली इट डिड नॉट टर्न आउट द सेम, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि इट विल लीड टू रिड्यूस्ड मोटिवेशन। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह की काफ़ी सारी जब ब्रीच होता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो लेबर मोटिवेशन लेबर जो है वो डीमोटिवेट, जैसे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू यू वर टोल्ड दैट द वर्किंग आवर्स आर 9 to 5, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एक्चुअली यू आर सपोज टू सिट एट 7 or 8 o'clock from early morning till 7 or 8 in the evening, ठीक है, without paying for that extra labor या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगेन इट इज़ द ओवरवर्किंग जो है, ओवरवर्क कराना एम्प्लॉइज। तो ये सारा ब्रीच है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं मैं जो आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह के फिर मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, तो विच इज़ अ टेंशन फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट हाउ दे हैव टू डील विद दिस टेंशन, ठीक है। और अब इसमें देयर आर 2 types ऑफ अप्रोचेस। वन इज़ द यूनिटरिस्ट अप्रोच विच इज़ मेनली जहाँ पे जो छोटे स्मॉलर फर्म्स होती हैं, जहाँ पे ओनर मैनेजर होता है और वो एक फैमिली किस्म के बिजनेसेस होते हैं और एक ही मैनेजर है, उसने ही, वो ही इज़ द ओनर ऑल्सो ऑफ दैट बिजनेस और वो इसको चला रहा है। तो वो मोटिवेशन इशूज़ को कैसे डील करता है, थ्रू इम्प्रूविंग द कोऑपरेशन विद द एम्प्लॉइज, क्योंकि वो एक स्मॉलर लेकिन सेटअप है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच सेज दैट यू नीड टू इम्प्रूव द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स in order to improve the labor motivational issues, ठीक है। और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या इंसेंटिव्स जो हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स दे कैन बी डिट्रीमेंटल टू वर्कर मोटिवेशन एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये दूसरी टेंशन थी। उसके बाद लेबर मैनेजमेंट इज द थर्ड टेंशन। तो ये बेसिकली जो क्रिटिकल HR गोल था कि आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एजिलिटी अचीव करनी है, वहीं पे मैंने आपको ये टेंशन बता दी थी। तो इट इज़ द सेम कि आपने ये टेंशन हो जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने कैसे दोनों को, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एजिलिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एंड दैट इज व्हाई द कोर पेरिफेरी मॉडल्स इमर्ज्ड। तो आपको यू नीड टू अचीव अ क्लेवर बैलेंस बिटवीन द टू।
अच्छा, अब जो बेस्ट फिट स्कूल है, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट व्हेन वी कम टू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक तो है बेस्ट फिट स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है, और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। जो strategic HRM, there is a fundamental debate over how HRM is and should be linked to wider business strategy. To many scholars, it seems obvious that strategic HRM rests on a contingency approach. Firms fit their HRM to their particular strategies and environment and are wise to do so. So this is what the best fit school says. ठीक है, कि एक फर्म जो है उसके पास जो डिफरेंट HR प्रैक्टिसेस हैं, तो हर फर्म को उस वक्त वो वाली HR प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए जो उसके कॉन्टेक्स्ट में सूट कर रही हूँ। ठीक है, हर फर्म के लिए हर प्रैक्टिस नहीं है एज पर दिस, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपने कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री इन विच यू आर वर्किंग, अपॉन योर एनवायरनमेंट, अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अपॉन द वर्क सिस्टम्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स द जो पॉलिसीज हैं आपकी वो अडॉप्ट या इमर्ज करनी चाहिए। इसी तरह जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये स्मॉल फर्म्स हैं, उनको जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक स्मॉल फर्म है तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट माइट बी वेरी कॉस्टली फॉर दैट फर्म, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती इतना, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे माइट जो है वो चले जाएं इसको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। ओके, सो द एम्प्लॉयज़ दे माइट लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड गो एल्सवेयर, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने सो इसलिए स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल फर्म्स जो हैं उनको अपने डिसीजंस, उनके लिए चैलेंजेस और तरह के हैं। लार्ज फर्म्स के लिए चैलेंजेस और तरह के हैं, उनके और तरह के डिसीजंस होंगे, वो और तरह की प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करेंगे, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द फर्म्स आर ऑपरेटिंग। ठीक है, और देखें अब द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ HR स्ट्रेटजी, देयरफॉर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो HR स्ट्रेटजी को डिटर्मिन करता है, और वो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे आप किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है, ठीक है, क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, साइज फर्म का क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बेसिकली डिटर्मिन कि आपने क्या HR स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट फिट स्कूल है ये बेसिकली इंटरनल फिट देता है और एक्सटर्नल फिट देता है। इट सेज दैट एक फर्म को इंटरनल फिट भी अचीव करना चाहिए, विच इज़ द फिट बिटवीन द HR प्रैक्टिसेस, और एक्सटर्नल फिट भी। और एक्सटर्नल फिट क्या है? द फिट बिटवीन द HR प्रैक्टिसेस एंड द जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है एट द कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है कुछ फर्म्स की, जैसे जो डिफेंडर्स हैं और प्रोस्पेक्टर्स हैं और एनालाइजर्स हैं, 3 तरह की फर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, और डिफेंडर्स वो होती हैं जो बेसिकली स्टेबल, जिनकी प्रोडक्ट लाइन होती है, ठीक है, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड, जो ग्रोथ जो करती हैं थ्रू पेनिट्रेशन, देयर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी। प्रोस्पेक्टर्स ऑन द अदर हैंड कौन सी हैं? जो इनोवेशन ओरिएंटेड होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, और दे ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, जैसे एप्पल है। और जो एनालाइजर्स हैं, दे आर बेसिकली स्टेबल, बोथ प्रोस्पेक्टस और डिफेंडर्स का दे आर अ मिक्सचर ऑफ द टू। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रेटजी है दैट इज स्टेबल एंड चेंजिंग प्रोडक्ट लाइंस। अब देखें स्टाफिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, इन तीनों फर्म्स की डिफरेंट HR प्रैक्टिसेस की 2-3 की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है कि इन तीनों की डिफरेंट होंगी। ठीक है, जो HR स्ट्रेटजी है इन तीनों की, इन ऑर्डर फॉर टू मैच विद देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो डिफेंडर्स की मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिफरेंट है, इन तीनों की डिफरेंट है। अब स्टाफिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो आप देखें कि जो डिफेंडर्स हैं जो कि स्टेबल लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपैरल वगैरह की फर्म्स हो गई, तो दे एम्फसाइज ऑन इंटरनल डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा चेंजेस नहीं है मार्केट में और स्किल सेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए उनको आउटसोर्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। सो दे एम्फसाइज ऑन द इंटरनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मेक के ऊपर। जबकि प्रोस्पेक्टर्स विल एम्फसाइज ऑन रिक्रूटमेंट टू बाय, सो दैट जो भी चेंजेस, नई नई स्किल्स चाहिए, इनोवेशंस जो आ रही हैं, वो उनको वो रिक्रूटमेंट के थ्रू आउटसोर्सिंग करके एंड दे कैन वो कर सकते हैं, जैसे डेल करता है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब एनालाइजर्स जो हैं उसमें क्या है, फिर दे फॉलो द मिक्स्ड अप्रोच, दोनों की, बोथ द मेक एंड बाय। फिर इस तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं उसमें भी आप देखें कि प्रोसेस ओरिएंटेड एंड लिंक्ड टू ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होगा इन केस ऑफ द डिफेंडर्स। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इट इज़ मोर लिंक्ड टू द प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टर्स जो इनोवेटिव फर्म्स हैं, दे नीड आउटपुट, उनको आउटकम्स चाहिए, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपकी गेज होगी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने आउटपुट क्या दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके बेस के, और एनालाइजर्स जो हैं उसमें ज़्यादातर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। और इसी तरह पे पॉलिसीज जो हैं वो दे विल बी फोकस्ड ऑन इंटरनल इक्विटी इन टर्म्स ऑफ डिफेंडर्स। प्रोस्पेक्टर्स के केस में क्योंकि अगेन हाई स्किल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस देखनी पड़ेगी। और एनालाइजर्स के बेस में
केस में सिंस उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी मिक्स ऑफ बोथ है, इसलिए उनकी जो एचआर स्ट्रेटजी है वो भी मिक्स ऑफ बोथ होगी। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको इस तरह की एग्जांपल पहले भी दी थी कि एक स्टडी हुई थी 200 स्पेनिश फर्म्स की। सो इनोवेटिव फर्म्स, दे वहाँ पे पता चला कि जो इनोवेटिव फर्म्स हैं दे फॉलो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेजेस वो ज़्यादा देते हैं, हायर करते हैं क्रिएटिव और इनोवेटिव पीपल, एंड गिवन ग्रेटर पावर्स एंड डिस्क्रिप्शन टू एम्प्लॉयज, रिड्यूस्ड कंट्रोल्स, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उनको दी जाती है, प्रोवाइडिंग मोर रिसोर्सेज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि ये इनोवेशन के लिए चीज़ें सारी ज़रूरी हैं कि आप उनको ट्रेन भी करें, डेवलप करें एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अगर एक फार्म जो है वो कॉस्ट ओरिएंटेड है या कॉस्ट लीडरशिप फार्म है, स्टेबलाइज्ड उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और वो रूटीनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं सारी, तो उसके लिए ना आपको इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको इतनी डिस्क्रिप्शन पावर देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एक जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे फॉलो होते हैं और यू कैन से दैट मोर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं जो फर्म्स जिनके स्टेबल लाइन ऑफ बिजनेस होता है, तो वहाँ पर उनकी जो एचआर स्ट्रेटजीज हैं वो टोटली फिर डिफरेंट हैं कंपेयर टू इनोवेटिव और क्रिएटिव एम्प्लॉइज, हाई स्किल्ड वर्कर्स उनको जरूरी नहीं है, तो वहाँ पे इनकी जो एचआर स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट होगी। इतना उनका एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा, इतनी एक्सटेंसिव उनकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं होगी जितनी कि एक इनोवेटिव फर्म्स में होगी। अच्छा, इंटरनल फिट की अब बात करते हैं कि इंटरनल फिट में एक कॉम्प्लीमेंट्री फिट है। तो दिस थ्योरी बेसिकली सेज कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फिट अचीव करना चाहिए, विच इज़ बेसिकली कि आप जो सिंगल एम्प्लॉय फिट है कि अगर आपने एक एम्प्लॉय को बहुत एक्सपेंसिवली रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, एक्सटेंसिव उसके ऊपर स्पेंडिंग करके मल्टीपल लेयर्स की रिक्रूटमेंट की है, सिलेक्शन किया, तो उसके बाद फिर उसको ट्रेन भी करें। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी खर्च करने के, एक प्रैक्टिस पे, एक पॉलिसी के ऊपर आप हैवीली एक्सपेंस कर रहे हैं एक एम्प्लॉई पे, दूसरे पे नहीं कर रहे तो वो उसको यूजफुल नहीं होगा, सिनर्जी क्रिएट नहीं होगी। दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस एम्प्लॉई फिट होना चाहिए। ठीक है, सच एज द स्टैंडर्डाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क कंडीशंस फॉर सेम ऑक्यूपेशनल ग्रुप, जैसे मतलब कि डिफरेंट क्लार्क्स हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक ही लेवल पे रखा जाए और एक ही तरह से उनको ट्रीट किया जाए। और टेम्पोरल कंसिस्टेंसी में ये है कि आप कंसिस्टेंटली अगर एक एम्प्लॉय को आज जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं एज अ मैनेजर, उसके साथ कीप ऑन बिहेविंग द सेम वे विद दैट एम्प्लॉय ओवर द ईयर्स। ये नहीं कि आज उसका हाई ट्रस्ट मैनर में उसको ट्रीट कर रहे हैं या उसके साथ आपका बिहेवियर डिफरेंट है एंड आफ्टर अ ईयर इट इज़ डिफरेंट। सो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इन डुप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और असेसमेंट सेंटर टेकिंग 5 to 6 टेस्ट, आपने इतनी सारी लेयर्स लगाई हुई हैं तो इतनी कॉस्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह डेडली कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना चाहिए, सच एज हैवी ट्रेनिंग ऑन टीम वर्क बट इंडिविजुअलिस्टिक रिवॉर्ड्स। तो क्रिटिक इसका यही है बेसिकली कि टॉक्स अबाउट द फिट बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द जो स्ट्रेटजी है वो और जो आपके एचआर प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में, लेकिन इट डज नॉट टॉक अबाउट द फिट विद द एम्प्लॉय नीड्स। के एचआर प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉयज़ की नीड के साथ भी अलाइंड होना चाहिए एंड दे शुड सी के एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल लेजिटिमेसी, सोशल नीड्स के बारे में ये बात नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसका मेनली क्रिटिक था। और इंटरनल फिट के ऊपर सच काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस फिट्स आर नॉट प्रैक्टिकल, सच एज हाई कमिटमेंट वर्क सिस्टम्स, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ले ऑफ्स, जॉब इनसिक्योरिटी एंड दे इरोड कमिटमेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टॉपिक। ठीक है, इसके बाद ये कॉस्ट लीडरशिप और जो फर्म है, दोनों फर्म्स जो हैं वो एक ही उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, ये वाली आपको ग्राफ ये शो कर रहा है, लेकिन उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। ठीक है, एक हाई कैपिटल इंटेंसिव फर्म है और एक लेबर इंटेंसिव फर्म है, और लेकिन दोनों कॉस्ट लीडरशिप हैं। ठीक है, तो अब उन दोनों की इम्प्लीकेशंस एचआर स्ट्रेटजी के लिए क्या होंगी ये आप लोग इसको देखें। ऑलरेडी मैं आपको इससे मिलती जुलती एग्जांपल दे चुकी हूँ, सो आई एम श्योर कि यह आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के साथ एचआर स्ट्रेटजी इज लिंक्ड। जो डिजायर्ड आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनोवेटिव स्ट्रेटजी है, तो आपकी एम्प्लॉय स्किल्स आपको कौन सी चाहिए होगी, जो इनोवेटिव एम्प्लॉयज हों, क्रिएटिव हों। तो उसके लिए सपोर्टिव एचआर प्रैक्टिसेस क्या होंगी, आप उन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो कि इनोवेटिव होंगे और स्किल्ड होंगे, आप उनके मल्टीपल सिलेक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व करेंगी और इस तरह से इंश्योर करेंगे। और एचआर आउटकम्स क्या होंगे, एम्प्लॉय बिहेवियर इनोवेटिव होगा, तो इस तरह से अलाइनमेंट होगी।
अच्छा, दूसरा हमारा जो स्कूल है ना वो है बेस्ट प्रैक्टिस स्कूल. बेस्ट प्रैक्टिस स्कूल इज द अदर स्कूल ऑफ द HRM, स्ट्रेटेजिक HRM. एंड यू नो इट सेज दैट कॉन्ट्रेरी टू द बेस्ट फिट में तो ये था कि कॉन्टेक्स्ट पे एम्फेसिस है. आपने देखा कि कैसे इट टॉक्स अबाउट कि आपने जो HR की फर्म की जो कंपेटिटिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है उसके साथ आपकी HR स्ट्रेटेजी को अलाइंड होना चाहिए. और आपकी कोई एक HR स्ट्रेटेजी हर फर्म की नहीं हो सकती, क्योंकि हर फर्म एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है. हर फर्म की कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, इसलिए उसकी HR स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होगी और होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रीप द गुड आउटकम्स. लेकिन बेस्ट फिट प्रैक्टिस स्कूल ये कहता है कि अगर आपका you can reap the maximum benefits when कुछ set of HR practices अगर हर firm adopt करे, और वो irrespective of the context in which it is operating, irrespective of the geographical boundary, irrespective of anything, the firms who adopt a set of best practices, they are going to be successful. So ये basically view school of thought है, ये कुछ set of HR practices देता है कि बंडल है कि कुछ authors जो हैं वो 8 की 6 की देते हैं, कुछ 12 की देते हैं, कुछ 18 की देते हैं, कुछ 24 की देते हैं. तो there is एक तो criticism इसका यही है कि वो कौन सी exactly क्या set of HR practices है, कौन सी practices adopt की जाएं तो they will lead to best outcomes irrespective of the context. ठीक है, तो बट दिस इज व्हाट द स्कूल ऑफ थॉट सेज कि अगर आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो दे विल इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटीज सच एज क्या सिलेक्शन आप उनकी करें, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दें एम्प्लॉयज़ को, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम करें, ठीक है, कॉम्पनसेशन हो, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हो. सो ऑल दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कि अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी उसको उसके पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे. और वो कैसे मिलेंगे? बिकॉज दीज प्रैक्टिसेस विल इन्हांस द एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी AMO के थ्रू, कि उनकी एबिलिटीज को इन्हांस करेंगी ये प्रैक्टिसेस, एंड एज अ रिजल्ट जो है वो आपकी इंप्रूव होगी. तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो दे आर डेफिनेटली बेटर देन द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इज टाइड टू ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स सच एज द प्रॉफिट्स ROI दैट इज बेटर ओवर द प्रोसेस ओरिएंटेड जो अप्रेजल है, सच एज मेजर्स ऑफ टाइम की कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया है. ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल है. उससे बेहतर है कि आप आउटपुट ओरिएंटेड देखें कि आउटकम क्या था. तो इसी तरह हाई पे बट लेसर पे इन इक्विटी टू इनकरेज द टीम वर्किंग. ठीक है, एंड प्रमोशन फ्रॉम विद इन, हायर वेजेस, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, टीम, जॉब रीडिजाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो वाले हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये वो वाले हैं कि अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपको अच्छे आउटकम्स मिलेंगे. क्रिटिक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक तो ये है कि ये पता नहीं है कि कितने सेट्स HR प्रैक्टिसेस एग्जैक्टली कौन सा बंडल है उसका, 4 वाला है, 6 वाला है, 12 वाला है, 18 वाला है, कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट ओपिनियन है. दूसरा ये कि बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मैनेजर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन HR, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस. ठीक है, एंड व्हाट इफ अ प्रैक्टिस इज गुड फॉर कॉर्पोरेट गोल्स बट नॉट फॉर एम्प्लॉइज. ठीक है, कि अब जैसे ले ऑफ की प्रैक्टिस है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है तो उसके लिए तो वो मे बी दैट इज हेल्पफुल, लेकिन वो दैट्स नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉइज. सो हाउ इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द एम्प्लॉइज. देन इसके सेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट वगैरह, हाउ कैन यू इग्नोर दैट, एक बहुत मेजर क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर. सच एज द इनोवेटिव फर्म्स दे मेक यूज ऑफ मोर जॉब रोटेशन, टीम वर्किंग कंपेयर टू द लो टेक फर्म्स. ठीक है, तो इसलिए हाउ सेम HR प्रैक्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये बेसिकली जो है मेन इसका क्रिटिसिज्म यही है कि जो एक वन प्रैक्टिस या वन साइज डज नॉट फिट ऑल. ठीक है, बट दिस अप्रोच सेज दैट वन साइज फिट्स ऑल. ठीक है, तो जो पहले आपको बेसिकली 2 कॉन्ट्रास्टिंग देखें अप्रोचेस हैं, ये इसका क्रिटिसिज्म था और ये इसके ऊपर इस बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच के ऊपर. ठीक है, और आप इनमें बड़े सटल डिफरेंसेस हैं इन दोनों अप्रोचेस में. आई नो इट्स लिटिल, थोड़ी सी शायद आप लोगों को ये मुश्किल लगेगा, और बट आई एम श्योर कि अगर आप इसको केयरफुली, बहुत केयरफुली पढ़ें, बॉक्सेल एंड पुर्सेल की बुक में से आप इसको प्रिपेयर करेंगे. बॉक्सेल एंड पुर्सेल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है और उसका मेरा ख्याल है 2nd चैप्टर होगा या 3rd होगा. सो या फर्स्ट, यस ऑल्सो फर्स्ट द इंट्रोडक्शन, कुछ पार्ट उसमें से है और कुछ मेरे ख्याल है 2nd में से है, तो यू विल हैव टू सी दैट. सो इट इज़ फ्रॉम दैट बुक आपने इसको प्रिपेयर करना है. ठीक है, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया आज का लेक्चर. आई नो थोड़ा सा हैवी एजेंडा था आज के लेक्चर के लिए, बट वी रियली हैड टू फिनिश इट ऑल. दैट्स वाई कुछ जगह के ऊपर मैंने थोड़ा सा रश भी किया है, लेकिन आपको कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे मैं समझा दूँ. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. आई थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.